آغاز کرتے ہیں اس اہم خبر کے ساتھ۔ پی ایس ایل سپاٹ فکسنگ سکینڈل میں چوتھا پاکستانی کھلاڑی بھی آؤٹ ہو گیا۔ شاہزیب حسن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے۔ پی سی بی نے شاہزیب حسن پر فرد جرم عائد کر دی۔ اس پر 14 روز سے جواب بھی طلب کر لیا گیا ہے۔ سپاٹ فکسنگ اسکینڈل میں شاہزیب حسن کو بھی معطل کر دیا گیا ہے اور 14 روز میں جواب جمع کرایا جائے گا۔ نمائندہ نیونس ابراہیم بادیس ہمیں مزید تفصیلات سے آگاہ کریں گے۔ ابراہیم بتائیے گا ابھی تک کیا مزید پیش رفت ہو رہی ہے سارے معاملے میں؟ جی بالکل، 500 کی شاہزیب حسن کو بھی سپاٹ فکسنگ کیس میں جو ہے وہ معطل کر دیا گیا پی سی بی کی جانب سے۔ 3 شکوں کی خلاف ورزی پی سی بی کا کہنا ہے کہ شاہزیب حسن نے کی، ان میں 2.1.4 2.4.4 اور 2.4.5 یہ پی سی بی کی کوڈ آف کنڈکٹ کی وہ شکیں جن کی خلاف ورزی شاہزیب حسن پر کرنے کا الزام ہے، اس وجہ سے ان کو معطل کر دیا۔ 14 روز کے اندر شاہزیب حسن بقایا طور پر اب تحریری بیان اپنا جمع کریں گے پی سی بی کو، اور ان کے اوپر الزام دیا کہ انہوں نے کھلاڑیوں کو اکسایا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بر وقت پی سی بی کو نہیں بتایا بکس سے رابطے کے حوالے سے۔ اس کے علاوہ جو تیسرا ان کے اوپر الزام ہے وہ یہ ہے کہ شاہزیب حسن کو تمام معلومات تھی، انہوں نے وہ معلومات پی سی بی سے شیئر نہیں کی اس تمام واقعے کی۔ تو یہ 3 الزامات شاہزیب حسن پر لگائے گئے ہیں۔ شاہزیب حسن بقایا طور پر تحریری جو آپ نے 14 روز کے اندر جو ہے وہ یہاں پہ پی سی بی کو جمع کرائیں گے، اور اگر وہ ان الزامات کو مان لیتے ہیں تو پی سی بی کی جانب سے 5 سال سے لے کے تاحیت پابندی کچھ بھی ریکمینڈ کی جا سکتی ہے شاہزیب حسن کو۔ اگر وہ نہیں مانتے تو پھر شاہزیب حسن کے ٹریبیونل کا آپشن اوپن ہے، وہاں پہ ٹریبیونل پہلے ہی پی سی بی اناؤنس کر چکا ہے، تو شاہزیب حسن پھر وہاں پہ چلے جائیں گے، پی سی بی ان کو وہاں پہ ریفر کر دے گا، پھر وہاں پہ جو ہے وہ اوپن ہیئرنگ ہوگی، وہاں پہ تمام جو شجیل خان، خالد لطیف، محمد اور جو تیسرے جو ہے وہ شاہزیب حسن وہاں پہ ہوں گے اپنا کیس ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ جی ابراہیم، آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید صاحب نے۔ ہارون صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے۔ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ایک اور کھلاڑی بھی آج آؤٹ ہو گیا؟ دیکھیں، یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو بہت پاکستان یونٹ کے لیے میں فیل کرتا ہوں کہ اس کا جتنی جلدی سدباب ہو اتنا زیادہ بہتر ہوگا پاکستان کے فیوچر کے لیے، کیونکہ یہ جو پلیئرز جتنے بھی ہیں جو صاف چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ ان کو اپروچز ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنی مینجمنٹس کو نہیں بتایا۔ آئی تھنک ایک بہت بڑا بریچ ہے جس کی کافی سخت سزا رکھی ہوئی ہے پی سی بی نے اپنے کوڈ آف کانڈکٹ۔ اب بار بار یہ کہنا کہ یہ جی ہم انوالو نہیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ تینوں ہمارے آصف، عامر اور سلمان بھی شروع میں جب ان کے اوپر یہ چارجز لگے تھے تو انہوں نے بھی ڈینائی کیا تھا، تو اس کے بعد پروو نہیں کر سکے تھے۔ اگر تو یہ ان کے پاس اتنے سالڈ ایویڈنسز ہیں کہ جی انہوں نے ایسی کوئی چیز نہیں کی ہے، لیکن بعض جگہ پر انہوں نے اعتراف بھی کر لیا کہ جی ہم ملے تھے، ہم نے آپ کو دیر سے بتایا، اور میرے پاس کسی نے کہا کہ مجھ پہ اسٹریس ہے، کوئی کہہ رہا تھا مجھے ڈیتھ تھریٹس آ رہی ہیں۔ تو آئی تھنک یہ سارے وہ لیم ایکسکیوزز ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ ان پلیئرز کو اپروچز ہوئی تھی لیکن انہوں نے اپنی مینجمنٹس کو نہیں بتایا، جو کہ ایک بہت بڑا بریچ ہے جس کے اوپر ڈیفینیٹلی کوئی نہ کوئی ایکشن لیا جانا چاہیے۔ ٹھیک، لیکن ہارون رشید صاحب ابھی تک آپ یہ صحیح فرما رہے ہیں کہ رابطوں کے حوالے سے تمام کھلاڑیوں نے اعتراف کر لیا ہے، ان 4 کھلاڑیوں کی جانب سے اعتراف کیا گیا ہے، لیکن آگاہ نہ کرنا یہ پاسبلٹی میں نہیں تھا۔ تو آپ کے خیال سے یہ بھی اتنا سنگین جرم ہے جس پر شاہد آفریدی تو کہہ رہے ہیں کہ تاحیات پابندی لگ جائے، میاں داد نے یہ کہا ہے کہ پھانسی کی سزا دینی چاہیے؟ دیکھیں، اس میں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھیں گے کہ اگر آپ کوڈ کو پڑھیں گے نا تو کوڈ میں تو سب سے پہلا ان کو تو 3-4 شکوں پہ ان کو کہا گیا ہے، لیکن جو پہلی شک ہے جس میں یہ ہے کہ آپ کو انفارم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی بھی آپ سے رابطہ کرتا ہے، پی سی بی کی اینٹی کرپشن کوڈ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے اپنی مینجمنٹ کو نہیں بتایا تو آپ کو 6 مہینے سے لے کے تاحیات پابندی لگ سکتی ہے۔ تو آئی تھنک سیویریٹی آف دا فائن تو وہاں پر ہے۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جب یہ چیزیں پروو ہوتی ہیں تو ٹریبیونل یا کوئی بھی جو ادارہ ہے وہ کتنی سزا ان کے لیے مختص کرتا ہے۔ تو میرے اپنے نزدیک یہ تو آلریڈی ان کو پتا ہی تھا کہ ان کو نہ بتانے کی صورت میں تاحیات پابندی لگ سکتی ہے۔ ٹھیک، ہارون صاحب کیا سمجھتے ہیں آپ؟ پہلے بھی اس طرح کا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے، کھلاڑیوں نے اس واقعے سے بھی کوئی سبق نہیں سیکھا۔ دیکھیں، یہ تو بہت زیادتی ہے نا۔ آپ دیکھیں، پاکستان کے نام سے کھیلنے والے کوئی بھی کھلاڑی کو میں تو یہ فیل کرتا ہوں کہ اگر یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو کوئی نہ کوئی ایسی مثال قائم کرنی چاہیے تاکہ آئندہ یہ چیز رک نہیں سکتی۔ دیکھیں، ایک چیز میں آپ کو بتاؤں کہ اٹ از ناٹ اونلی ان پاکستان، دنیا بھر میں آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہوتی رہتی ہیں۔ پلیئرز کو فائن بھی ہوتے ہیں، واپس بھی آتے ہیں، چاہے ٹینس ہو، فٹ بال ہو یا اور کسی بھی قسم کا کوئی بھی اسپورٹ ہو، لوگ ڈوپنگ میں بھی انوالو ہوتے ہیں۔ تو آئی تھنک برائیاں تو جو ہیں وہ تو رہیں گی، لیکن اس کا سدباب کرنے کے لیے آپ کو اپنے سسٹم کو اتنا مضبوط کرنا پڑے گا کہ لوگ وہ چیز کرنے سے پہلے سوچیں کہ یہ ہمیں کیا سزا مل سکتی ہے۔ ان کھلاڑیوں نے سسٹم کو مضبوط کرنا ہوگا اور کوئی ایسی مثال قائم کرنی ہوگی کہ آئندہ کوئی بھی پلیئر اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ بہت شکریہ سابق چیف سلیکٹر ہارون رشید صاحب ہمارے ساتھ شریک گفتگو تھے۔ شاہد آفریدی نے میچ فکسنگ کرنے والوں پر تاحیات پابندی کا مطالبہ کر دیا ہے۔ شاہد آفریدی نے تاحیات پابندی کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کرکٹ کو پاک کرنا ہے تو مثال قائم کرنی ہوگی۔ جبکہ جاوید میاں داد نے ملک کا نام بدنام کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا کہہ دیا۔ کراچی سے دیکھتے ہیں زاہد غفار کی رپورٹ۔
पाकिस्तान के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी ने मैच फिक्सिंग करने वालों पर ताहयात पाबंदी का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कि क्रिकेट को पाक करना है तो मिसाल कायम करना होगी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पहले ही सख्त फैसले करता तो ये नौबत न आती। एक प्लेयर को पता है कि मैंने 5 साल 4 साल की सजा के बाद टीम के अंदर वापस आ जाना है, तो वो डर और खौफ नहीं होगा। आप एक एग्जाम्पल सेट करें, और ये बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप एग्जाम्पल सेट करें, वरना ये चीजें होती रहेंगी। वहीं जावेद मेदाद ने मुल्क का नाम बदनाम करने वालों को सजाए मौत देने का कह दिया। आप एक सख्त डिसीजन तो लें, डेथ पेनल्टी दे दें आप, मैं देखता हूँ फिर करके वही बताए। बूम बूम ने मेसी को अपना पसंदीदा फुटबॉलर करार दिया। ब्राजील के शौराए आफाक फुटबॉलर रोनाल्डिनियो पाकिस्तान में नुमाइशी फुटबॉल मैच खेलकर तारीख रकम करेंगे। ब्राजीलियन स्टार रोनाल्डिनियो के अलावा नेदरलैंड के जॉर्ज पोंटिंग और इंग्लैंड के साबिक गोलकीपर डेविड जेम्स भी रवा साल पाकिस्तान का रुख करेंगे। कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ जाहिद गफ्फार, नियो न्यूज कराची। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज अहमद का कहना है कि स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल में मुलविस खिलाड़ियों के जाने से टीम कॉम्बिनेशन खराब हुआ। अजहर अली को ड्रॉप करना मकसद होता तो कैंप में ना बुलाते। देखिए एक बुरी चीज़ है, आई थिंक मैं इस पे कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मैं यही कहूँगा कि जाहिर सी बात है, अफसोस होता है कि आपके कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जो आपकी टीम की रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ऐसे प्लेयर होते हैं जो टीम के लिए सेट हो जाते हैं, लाइक शर्जील ऑब्वियसली। लेकिन हम सबको पता था कि वो एक ऐसा प्लेयर था जो तीनों फॉर्मेट में सेट होने लगा था। तो आई थिंक कोई भी अगर ऐसा प्लेयर होता है तो ऑब्वियसली दुख होता है, अफसोस होता है कि आपके एक टीम का एक कॉम्बिनेशन जो है वो खराब हो जाता है। अब आपको बताएं कि कराची के शहरियों को दूध कितने में मिलेगा। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोशों में तनाजा पैदा हो गया। सरकार के मुकर्रर करदा निर्ख तो 84 रुपए फी लीटर हैं, लेकिन अवाम को दूध 90 रुपए फी लीटर तक मिल रहा है। डेयरी फार्मर्स दूध फरोशों को 75 रुपए में 1 लीटर दूध दे रहे हैं, और दूध फरोशों का कहना है कि 75 रुपए से लेकर 84 रुपए में फरोख्त करना घाटे का सौदा है। या तो डेयरी फार्मर्स सस्ता दूध दें या दूध के मार्केट निर्ख बढ़ाए जाएं। अवाम जहां दूध की कीमतों से परेशान थी, वहीं अब दूध फरोश भी सरापा एहतजाज बन गए। दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसमें सदर रिटेलर एसोसिएशन का कहना था कि दूध की कीमतों में इजाफे का तनाजे पर इंतजामिया खामोश है, जबकि कमिश्नर कराची डेयरी फार्म्स का साथ दे रहे हैं। पिशावर के अंदर 100 रुपए बिक रहा है, लाहौर के अंदर 90 रुपए बिक रहा है, इस्लामाबाद में 95 रुपए बिक रहा है, लेकिन कराची के साथ में जो इतना बड़ा मेगा सिटी है और इसमें 80 रुपए पे हमें जो पाबंद किया जा रहा है, और खालिश दूध जो कि 7 फैट का दुनिया में कहीं भी नहीं है, वो दूध हम यहाँ पे दे रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं। दूध फरोशों का कहना था कि अगर डेयरी फार्म्स की तरफ से किया गया इजाफा वापस नहीं लिया गया तो वो दुकानें बंद कर देंगे। हमारा मुतालबा है कमिश्नर कराची और चीफ सेक्रेटरी और सीएम वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब से कि इस मसले को फौरी तौर पर हल करें, वरना शहर में हम कारोबार जारी नहीं रख सकते, हम मजीद खसारा बर्दाश्त नहीं कर सकते। काफी रोज से जारी इस मसले से शहर में दूध की कीमतों का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है। कैमरामैन इफरान बशीर के साथ सिद्रा डार, नियो न्यूज कराची। अभी आपको बताएं कि कराची में दूध की कीमतों का तनाजा शिद्दत इख्तियार कर गया है, और दूध फरोशों ने कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज किया हुआ है, जो कि अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसान कोहाटी से। एहसान बताएगा दूध फरोशों के एहतजाज के बारे में। हाँ जी, कराची में आल कराची मिल्क रिटेलर एसोसिएशन की एक तंजीम है दूध फरोशों की, और इन्होंने आज कराची प्रेस क्लब के बाहर रुख किया है। यहाँ पर बड़ी तादाद में कराची के दूध फरोश सुबह से बैठे हुए हैं। अभी इनका कुछ खाने का वक्फा है, कुछ खाने भी खा रहे हैं। ये सुबह से यहाँ पर डेरा जमा के बैठे हुए हैं। इनका कहना ये है कि हमें दूध 82 रुपए तकरीबन 6 पैसे का पड़ता है दुकान पर, जो हम डेयरी फार्म से खरीद के लाते हैं, जबकि इंतजामिया कह रही है कि 80 रुपए लीटर फरोख्त करें। ये किस तरह से पॉसिबल है? अगर दूध के रेट कम करवाए हैं तो जो लोग डेयरी फार्मर्स हैं जिन्होंने दूध के रेट बढ़ाए उनके ऊपर कोई दखल नहीं चल रहा। उनके कहा कि रेट करें, हमसे महंगे क्यों की हवाले फिर दूध का मसला लेकर आप लोग खड़े हो गए। जी बस क्या करें, हमारी कमकिस्मती है कि इस मसले को इंतजामिया एक दफ़ा बैठ कर इसको मसले को हल कर दे तो हमारे लिए भी कारोबार को जारी रखना आसान हो जाए। ये मसला गुज़िश्ता 2 माह से बड़े शिद्दत इख्तियार कर गया है, और 21 जनवरी से डेयरी फार्मर ने अपने जो मुकर्रर करदा होलसेल कीमत थी, डेयरी कीमत थी, उसमें 4 रुपये 30 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। 4 रुपये 30 पैसे की हुकूमत से इजाज़त लेके बढ़ाया गया था? नहीं जी, बिल्कुल इजाज़त लेकर नहीं बढ़ाया गया था। ये मनमाना इजाफा था, और इसका नोटिस
ایک میٹنگ کے دوران کمشنر صاحب نے 27 فروری کو لیا اور ان کو آرڈر دیا کہ آپ پہلے اپنا منمانا اضافہ لیں، تب ہم پھر آپ کی نئی قیمت پر اور کریں گے، لیکن انہوں نے اسی وقت ان کے سامنے بھی منع کیا اور اس کے بعد انہوں نے سوچنے کا وقت لے کر چلے گئے، لیکن اس حکم کی عمل درآمد نہ ہونے پر انتظامیہ نے آج تک ان سے اچھا احسان، دودھ فروشوں ڈیری فارمرز کی جو آپس کی لڑائی ہے، اس میں نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کوئی حکمت عملی نہیں بنائی جا رہی کیا؟ ہاں جی بالکل، تنازع ڈیری فارمرز کا ہے، تنازع ملک ریٹیلرز کا ہے، اور جو کراچی کے تقریباً 2.5 کروڑ 3 کروڑ کے بعد یہ جو بنیادی ضرورت ہے، کراچی میں تقریباً 5 لاکھ لیٹر دودھ یومیہ یہاں پر کراچی میں کنزمپشن ہے، ہم بچہ کراچی والے لوگ پوچھتے ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیری فارمرز کو پوچھا کیوں نہیں جاتا۔ ان کے مطابق کمشنر کراچی نے کچھ گزشتہ مہینے سے میٹنگ کی تھی اور کہا تھا کہ جناب آپ نے 4 روپے کیوں قیمت بڑھائی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ سوچنے کا وقت دیں، لیکن انہوں نے اس پہ کچھ سوچنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ دیکھا یہی کیا ہے کہ جو ڈیری فارمرز ہیں وہ منمانے طور کے اوپر کسی سے کچھ رائے لیے بغیر، اجازت لیے بغیر دودھ کی قیمت بڑھا دیتے ہیں، احسان اور اس میں انتظامیہ کیوں حرکت میں نہیں آ رہی ہے؟ انتظامیہ اس تنازع کو حل کرنے کے لیے کیوں کچھ نہیں کر رہی اب تک؟ انتظامیہ یہ کہتی ہے، انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جہاں وقوع ہوتا ہے، یعنی کہ دودھ مہنگا بک رہا ہے تو دکانوں پر بک رہا ہے، ہم دکانداروں کو پکڑیں گے اور وہ آ کر دکانداروں کو پکڑتی ہے۔ میرے خیال ہے کچھ لوگ آپ کے گرفتار بھی ہوتے ہیں، جرمانے بھی آپ لوگوں پر ہو رہے ہیں۔ جی بالکل، ہمارے لوگوں کو 15 دن کی جیل اور 50 ہزار روپے جرمانہ ہو رہا ہے، جو بالکل ناجائز اور غلط ہے اور قانون کا غلط استعمال ہے، یہ ہمارے خلاف جو نہیں ہونا چاہیے۔ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم لوگ تو دودھ لے کر اپنا پروفٹ رکھ کر آگے بیچ رہے ہوتے ہیں۔ اچھا یہاں پر ہمیں یہ کوسچن نہیں ہے کہ دکان پر دودھ ملنے والا کتنا خالص ہوتا ہے، اس میں کتنا پانی ملایا جاتا ہے۔ بہت شکریہ، آپ کا اپڈیٹ کر رہے تھے۔ اہم خبر شامل کرتے ہیں 23 مارچ یوم پاکستان پریڈ کی تیاریاں شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ میں عروج پر ہیں۔ اس سال یوم پاکستان پریڈ میں پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی مسلح افواج کے دستے بھی شرکت کریں گے۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں، یوم پاکستان کے حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ عفت حسن رضوی سے۔ عفت بتائے گا کس طرح کی تیاریاں اس وقت جاری ہیں؟ جی بالکل، 23 مارچ یوم پاکستان کے حوالے سے تیاریاں عروج پر ہیں۔ پاکستان ڈے پریڈ کی تیاری جو ہے وہ جاری ہے شکر پڑیاں پریڈ گراؤنڈ اسلام آباد میں۔ اس سال یوم پاکستان ISPR کا کہنا ہے کہ پیپلز لبریشن آرمی چائنا کی مسلح افواج کے دستے شریک ہوں گے۔ ساتھ ہی اسپیشل جو ہوگا اس سال کی پریڈ میں، اس میں سعودی اسپیشل فورس اور ترکی کی جانصاری ملٹری بینڈ جو ہے وہ بھی شریک ہوگی۔ ساتھ ہی ISPR کا کہنا ہے کہ ساؤتھ افریقن نیشنل ڈیفنس فورس کے چیف جنرل بھی پاکستان ڈے کی پریڈ میں شریک ہوں گے۔ جی بہت شکریہ عفت حسن رضوی، ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 3 روزہ دورہ چینی وزیر خارجہ مسٹر وانگ لی سے ملاقات ہوئی۔ سی پیک منصوبہ، خطے کی صورتحال اور سیکیورٹی چیلنجز پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا 3 روزہ دورہ چین۔ چینی وزیر خارجہ مسٹر وانگ لی سے ملاقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کو درپیش چیلنجز کے حوالے سے تبادلہ خیال۔ مسٹر وانگ لی نے خطے میں امن و استحکام کے لیے پاکستان کے کردار کو سراہا۔ پاکستان کی جانب سے ہمسایہ ممالک بھارت اور افغانستان سے اچھے تعلقات کی کوششوں کی تعریف بھی کی۔ چینی وزیر خارجہ نے سی پیک منصوبے کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا کہنا تھا کہ پاکستان چین کے ساتھ مضبوط دوستانہ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ امن کے دشمنوں کے خلاف آپریشن رد الفساد جاری ہے۔ کوئٹہ، اسلام آباد اور پشاور میں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائیاں کی ہیں۔ افغان باشندوں سمیت کالعدم تنظیم کا ایک دہشت گرد گرفتار کر لیا گیا۔ ڈیرہ غازی خان کے قبائلی علاقے میں رینجرز نے کارروائی کی ہے، جس میں 5 دہشت گرد ہلاک اور 7 گرفتار کر دیے گئے۔ ملک بھر میں فسادیوں کے خلاف آپریشن رد الفساد کا سلسلہ جاری ہے۔ ISPR کے مطابق FCO اور حساس اداروں نے کوئٹہ اور مسلم باغ میں کارروائیاں کی۔ سریاب کے علاقے سے 3 مشتبہ افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ ترجمان پاک فوج کے مطابق مسلم باغ میں کارروائی کے دوران 136 بارودی مواد، 10,000 سے زائد ڈیٹونیٹنگ کارڈز اور 3,256 ڈیٹونیٹرز برآمد کر لیے گئے۔ اسلام آباد میں وفاقی پولیس، رینجر اور حساس اداروں نے پنڈوڑیاں نیو شکریال میں سرچ آپریشن کے دوران گھروں، ریستورانز اور دکانوں کی تلاشی لی۔ 2 افغانیوں کو بھاری اسلحے سمیت حراست میں لے لیا گیا۔
पिशावर हरियाणा रोड पर महकमा इंसदाद दहशतगर्दी ने कार्रवाई करते हुए मुबैना दहशतगर्द मोहम्मद यासिर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। दूसरी जानिब डीजी पंजाब रेंजर्स मेजर जनरल अजहर नवीद हयात की जेर निगरानी डेरा गाजी खान में सर्च ऑपरेशन किया गया। जिंदा पीर के मकाम पर रेंजर्स और शरपसंदों के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 दहशतगर्द हलाक जबकि 7 को गिरफ्तार कर लिया गया। पाक अफगान सरहदी इलाके में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी आई है। पाक फौज ने राजगाल में फजाई कार्रवाई की है, जिसके दौरान दर्जनों दहशत गर्द मारे गए हैं। दूसरी जानिब सरहद पार से एफसी चेक पोस्ट पर हमला करने वाले 6 दहशत गर्दों को जहन्नम वासिल कर दिया गया है। शब कदर में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई और 2 खुदकुश बमबारों को हलाक कर दिया गया है। फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार भी शहीद हो गए। पाक अफगान सरहदी इलाके को दहशत गर्दों से पाक करने का सिलसिला जारी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने कलदम लश्कर इस्लाम के सरगना मंगल बाग की मौजूदगी की इत्तला पर वादी राजगाल में दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाया। पाक फौज की फजाई कार्रवाई में मुतादिद दहशत गर्द मारे गए, जबकि उनके दर्जनों ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। उधर सरहद पार छुपे दहशत गर्दों ने बुज़दिलाना कार्रवाई करते हुए खैबर एजेंसी में एफसी चेक पोस्ट पर हमला किया। पाक फौज ने मुअस्सर और मुंह तोड़ जवाब देते हुए 6 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया, जबकि फायरिंग के तबादले में 2 एफसी एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। इससे पहले 4 सदा के इलाके शब कदर में एफसी ट्रेनिंग सेंटर पर दहशत गर्दों के हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। पाक फौज के शोबाए तालुकात आमा के मुताबिक ट्रेनिंग सेंटर पर हमला करने वाले 2 दहशत गर्दों को हलाक कर दिया गया, जबकि फायरिंग के तबादले में 1 एफसी एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक 2 खुदकुश हमलावरों ने सेंटर के बाहर खुद को धमाके से उड़ा लिया, जबकि उनका एक साथी फरार हो गया। और नादरा की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लग गया। सानिया चेरिंग क्रॉस के मुलजिम अनवारुल हक का नादरा रिकॉर्ड मशकूक निकला। नादरा रिकॉर्ड के मुताबिक मुलजिम और उसके भाइयों की तारीख पैदाइश एक ही है। तफसीलात बताएंगे हम्माद असलम। चेरिंग क्रॉस लाहौर बम धमाका, मरकजी मुल्जिम अनवारुल हक का नादरा रिकॉर्ड मशकूक। अनवारुल हक, उसके वालिद और 3 भाइयों की पैदाइश एक ही दिन। नादरा की कारकर्दगी पर सवालात उठने लगे। दूसरी जानिब तहकीकाती इदारों ने अनवारुल हक की निशानदेही पर 4 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। दहशतगर्दों से तैयार खुदकुश जैकेट्स और धमाका खेज मवाद भी बरामद कर लिया। हम्माद असलम, नियो न्यूज, लाहौर। खबरों का सिलसिला जारी है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का। न्यू न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। न्यूज अपडेट्स आपने जानिए अहम खबर दें आपको। पनामा पेपर्स केस के फैसले का आइंदा जुमे तक आने का इम्कान नहीं है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया, जबकि PTI भी अपनी हिकमत अमली पनामा केस के फैसले के बाद फाइनल करेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आइंदा हफ्ते के लिए रोस्टर जारी कर दिया। पनामा पेपर्स केस का आइंदा जुमे तक आने का इम्कान नहीं। नए रोस्टर के मुताबिक जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस अजमत सईद अगले हफ्ते लाहौर रजिस्ट्री में मुकदमात सुनेंगे। जस्टिस गुलजार अहमद कराची रजिस्ट्री में मुकदमात की समाअत करेंगे। अदालत उस्मा के तीनों जज पनामा केस सुनने वाले बेंच का हिस्सा हैं। पनामा केस में रायत मिलेगी या सजा। फैसले की घड़ी करीब आने पर वजीर आजम ने मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास पीर को तलब कर लिया। तहरीक इंसाफ को भी पनामा केस के फैसले का इंतजार। सिंध में भी बाज़ाब्ता मुहिम कब होगी? आइंदा आम इंतखाबात में किनको टिकट दिए जाएंगे? PTI की क़यादत ने सारे फैसले पनामा लीक्स केस के फैसले से मशहूर कर दिए। इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तारीख का ऐलान भी पनामा केस का फैसला आने के बाद होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ केस की समाअत 22 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। अदालत ने मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद और उसको चलाने वालों के खिलाफ तशहीर का हुक्म दिया। तहकीकाती टीम में ISI के आला अफसरान भी शामिल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद की तशहीर के खिलाफ केस की समाअत
मुलजिमों की अदम गिरफ्तारी पर अदालत का इजहार बरहमी। 75 ऐसे लोगों की निशानदेही हुई है जो इस किस्म के पेजेस चला रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि FIA की कारकर्दगी मुतासर को नहीं रही। अल्लाह हमें वार्निंग दे रहा है, लेकिन हम टस से मस नहीं हो रहे। अदालत ने इस्तफार किया कि कौन सी NGOs हैं जो पाकिस्तान को मादर पिदर आजाद सोसाइटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने रिमार्क्स दिए कि पाकिस्तान में पाकिस्तान का आइन चलेगा, हम इंडिया और अमेरिका की पैरवी क्यों करें। अदालत ने मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद और उसके चलाने वालों के खिलाफ तशहीर का हुक्म दिया और तहकीकाती टीम में ISI के आला अफसरान शामिल करने की हिदायत भी कर दी। फैसलाबाद में कुत्ते के प्यार में इंसान की जान लेने वाला सफाक मुलजिम नवाहिला के सांगला हिल से गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम को थाना निशाताबाद पुलिस ने आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार किया। अदालत ने मुलजिम को जेल भेज दिया। तफसीलात जवेरिया नजीर की रिपोर्ट में। हाथों में हथकड़ी, चेहरे पर नकाब, ये है वो मुलजिम जिसने गुज़श्ता रोज 14 साला खाना बदोश बच्चे को महज कुत्ते को छेड़ने पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज करके करीबी रिश्तेदार की निशानदेही पर मुलजिम को आलाए कत्ल समेत सांगला हिल से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने खाना बदोश बच्चे को कत्ल करने वाले मुलजिम को मीडिया के सामने पेश तो कर दिया, मगर उसे किसी भी किस्म का बयान देने से रोके रखा। पुलिस ने कत्ल करने वाले 13 साला कमसिन मुलजिम को गिरफ्तार तो कर लिया, मगर इसकी गिरफ्तारी पर कई सवालिया निशानात हैं। कैमरामैन साजिद मलिक के साथ जवेरिया नजीर लियो, फैसलाबाद। उधर गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न होने पर खवातीन ने एहतजाज किया। मरीजों के लवाहिकीन और सिक्योरिटी गार्ड्स के दरमियान हाथापाई भी हुई। खवातीन मरीज ये कहती हैं कि अस्पताल का अमला और सिक्योरिटी गार्ड अपने मरीजों को नवाजने में मसरूफ हैं। गुजरांवाला के DHQ अस्पताल में अल्ट्रासाउंड न होने पर खवातीन का एहतजाज। गुजरांवाला डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए खवातीन सुबह से लाइन में खड़ी थीं। सिक्योरिटी गार्ड ने अपने मरीज को बगैर टोकन अंदर भिजवा दिया, जिस पर वहां पर खड़े मरीज मुश्किल हो गए। इस दौरान एक मरीज और सिक्योरिटी गार्ड के दौरान हाथापाई हो गई। सिक्योरिटी गार्ड ने मरीज को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। अस्पताल में मौजूद खवातीन का कहना था कि सिविल अस्पताल में एक ही अल्ट्रासाउंड मशीन है, जबकि अस्पताल का अमला और सिक्योरिटी गार्ड अपने मरीजों को पहले नवाज रहे हैं। इस दौरान खवातीन ने अस्पताल अमले के खिलाफ एहतजाज किया। और हैदराबाद लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जाम शोरों की तालिबा की गुमशदगी मुअम्मा बन गई। तालिबा के वालिद की DIG खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात हुई है। तफ्तीश के लिए वुमेन कंप्लेंट सेल की इंचार्ज ASP जाहिदा को तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया गया। हैदराबाद की तालिबा ताहाल बाजियाब न कराई जा सकती। वालिद ने DIG खादिम हुसैन रिंद से मुलाकात की। DIG ने तफ्तीश के लिए विमेन कंप्लेंट सेल के इंचार्ज ASP जाहिदा को तफ्तीशी ऑफिसर मुकर्रर कर दिया। लियाकत मेडिकल यूनिवर्सिटी जामशोरों की सेकेंड ईयर की तालिबा नौरीन जब्बार लगारी एक माह कबल लापता हो गई थीं। पुलिस के मुताबिक हैदराबाद के इलाके हुसैनाबाद की रिहायशी नौरीन 10 फरवरी को घर से निकली। तालिबा नौरीन ने मकामी बस स्टैंड से लाहौर के लिए टिकट बुक कराया और लाहौर के लिए रवाना हुई। ताहम पुलिस की जानिब से लड़की के वालिद की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज करके तलाश जारी है। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जदीद एम्बुलेंस सर्विस मंसूबा तवील अरसे से तातुल का शिकार रहने की खबर नियो न्यूज ने नशर की थी। ये खबर जिसके बाद सिंध हुकूमत जाग गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने जदीद एम्बुलेंस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया है। इससे पहले खबर ये थी कि वजीर आला सिंध मुराद अली शाह इस मंसूबे का इफ्तिताह करेंगे, लेकिन अब बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह किया है। ये एम्बुलेंस सर्विस अंदरूने सिंध जो मुस्तहिक मरीज हैं, जो मुस्तहिक लोग हैं, उनके लिए शुरू की गई थी और काफी अरसा ये एम्बुलेंस सर्विस तातुल का शिकार रही। नियो न्यूज ने इस मामले को उठाया और आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने खुद इस मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। मजीद खबरें और अपडेट्स होंगी एक ब्रेक के बाद। नियो न्यूज के साथ रहिए। वेलकम बैक। मुल्क भर में मर्दमशुमारी का सिलसिला जारी है, लेकिन मर्दमशुमारी के फॉर्म में बरादरी और कबीले का खाना मौजूद नहीं है। इस पर अरकान पंजाब असेंबली क्या कहते हैं, जानेंगे जुबैर साजिद से। पाकिस्तान की सियासत में बरादरीज़म का बड़ा अहम किरदार है, लेकिन मर्दमशुमारी के फॉर्म में बरादरीज़म का खाना मौजूद नहीं। इस पर अरकान पंजाब असेंबली क्या कहते हैं, आइए जानते हैं। हम सारे पाकिस्तानी हैं और कौमियत जो है हमारी पाकिस्तानी है, तो मेरा नहीं ख्याल उसको उसकी ज़रूरत थी कि उसको रखा जाता। मर्दमशुमारी का असल कॉन्सेप्ट तो यही है कि जी आपको पता हो कि आपकी आबादी कितनी है। अच्छा काम हो रहा है ये,
और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कलीदी किरदार अदा किया है। हमें इस ब्रदरिज्म से निकलना चाहिए, ये इस बात को तो मैं एंडोर्स करती हूँ। मर्दमशुमारी के फार्म में बरादरीज़म का खाना मौजूद ना होना हुकूमत और अपोजिशन ने खुश आइंद करार दे दिया। कहते हैं अच्छी बात है, इससे कौम में तफरीक नहीं पैदा होगी। कैमरामैन आसिफ खान के साथ जुबैद साजिद ढिल्लू, नियो न्यूज, लाहौर। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया दहली से आसिफ अली निजामी लाहौर से लापता हो गए। तर्जुमान नफीस ज़िक्रिया का कहना है कि भारतीय हाई कमीशन ने दफ्तर खारजा को आज ही गुमशुदगी के इत्तला दी। मुतल्लिका इदारे इस मामले का जायजा ले रहे हैं। सज्जादा नशीन दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के सैयद आसिफ अली निजामी साथी समेत लाहौर से लापता हो गए। तर्जुमान नफीस ज़िक्रिया का कहना है कि पाकिस्तान में भारतीय हाई कमीशन ने दफ्तर खारजा को गुमशुदगी से मुतालिक इत्तला दी है और मदद की दरख्वास्त की है। तमाम मुतल्लिका इदारे मामले को देख रहे हैं। भारतीय अखबार के मुताबिक आसिफ अली निजामी और नाजिम अली निजामी गुज़िश्ता 2 रोज से लापता हैं। वो कराची में अपने रिश्तेदारों से मिलने के बाद लाहौर आए थे। और पाकिस्तानियों को मुआशी तौर पर सुपीरियर बनाने के लिए नियो न्यूज पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो आइडिया करोड़ों का ला रहा है। प्रोग्राम का रंगा रंग रेड कारपेट शो आप देख सकेंगे आज शाम 7:05 पर सिर्फ नियो न्यूज पर। नियो न्यूज की एक और बड़ी काविश। वेलकम टू आइडिया करोड़ों का। आइडिया करोड़ों का पाकिस्तान का पहला बिजनेस रियलिटी शो, पाकिस्तान का सबसे बड़ा टीवी शो, पाकिस्तानियों की आवाज। करोड़ों के आइडिया की वजह से हम हर घर में होंगे, हर फैमिली के पास होंगे, हर गांव में होंगे, हर शहर में होंगे और लोग लाहासिल पॉलिटिकल डिबेट से हटकर आइडिया जनरेशन की तरफ या प्रोडक्टिविटी की तरफ आएंगे। इंशाल्लाह हमारा कल बहुत खूबसूरत होगा। हमारा पाकिस्तान सदा रहेगा, तरक्की करेगा और एक दिन वन ऑफ द बेस्ट नेशन होगा और सुपीरियर पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। आइडिया करोड़ों का में पाकिस्तानियों के सुपर हीरो सुनाएंगे कामयाबी की दास्तान। बासलाहियत नौजवान लाएंगे अपने आइडियाज और पाएंगे करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट। करोड़ों का आइडिया है जी सर, करोड़ों का आइडिया। नियो न्यूज के नाजरीन आइडिया करोड़ों का रेड कारपेट शो देखेंगे आज शाम 7:05 पर। खबरों का सिलसिला जारी है बुलेटिन में। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। देखते रहिए नियो न्यूज। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि मुल्तान में जश्न बहारा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। किला कहना कासिम बाग को खूबसूरत तरीके से सजा दिया गया। बाग फूलों की भीनी भीनी खुशबू से महक उठा। रिपोर्ट कर रही है मुल्तान से शिजा जबी। मुल्तान में जश्न बहारा की तैयारियां। किला कोहना कासिम बाग में रंगारंग फूलों की बहार। खुशबुओं से चमन महक उठा। लोगों को फूलों की दिलकशी इतनी भाई के सेल्फी लिए बिना ना रह सके। जश्न बहारा देखने आई हूँ और मैं यहाँ पे फूलों को देख के मेरी आंखों को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ बहुत ही अच्छा लग रहा है। डिफरेंट डिफरेंट कलर के फूल हैं। यहाँ देखकर आंखों को भी ठंडक सी महसूस हो रही है, दिल को भी सुकून सा मिल रहा है। जश्न बहारा फेस्टिवल के लिए 100 से ज्यादा इकसाम के फूल तैयार किए गए। पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर इंतजामिया ने जश्न बहारा के लिए 60,000 गमले तैयार किए हैं, जिन्हें शहर के मुख्तलिफ मकामात पर रखा जा रहा है। नुमाइश में सजाए गए ये खूबसूरत फूल बाग की खूबसूरती तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही माहौल को भी तरोताजा कर रहे हैं। कैमरामैन फयाज वागा के साथ शिजा जबी, नियो न्यूज, मुल्तान। और अब कुछ बात करें गली कूचों की रौनक बढ़ाते हुए 2 हैकल मुजस्मे। स्पेन में सालाना लास फेलास फेस्टिवल का आगाज हो गया। स्पेन में सालाना लास फेलास फेस्टिवल का आगाज हुआ, जिसमें दुनिया भर की मशहूर सियासी, समाज और फिल्मी शख्सियात के बड़े बड़े मुजस्समों को नुमाइश के लिए पेश किया जाता है। मुजस्समों की परेड देखने के लिए हजारों अफराद मरकजी शाहराहों का रुख करते हैं। और सनसनीखेज फिल्मों के शौकीन हो जाएं तैयार, क्योंकि दहशत और खौफनाक मनाजिर से भरपूर हॉलीवुड की नई थ्रिलर फिल्म वॉइस फ्रॉम द स्टोन का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म रवां साल 28 अप्रैल को सिनेमा घरों में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी। I must leave. No. Verena! She's given me her illness.
न्यूज बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही। लाइव स्ट्रीमिंग के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट neonetwork.pk। देखते रहिए नियो न्यूज।